Hello viewers, as you all know that we had started with the third chapter of MDKit, which is termed as adjective. And in the first video of adjective, I have taught you people that what is adjective. And second thing, I think we had done with the position of adjective, predicative adjective, post-positive adjective, and what was the third one? Attributive adjective. Okay, today we will be discussing about degrees of adjective. Degrees of adjective, just here in this video I will be giving small touch to degrees of adjective because I have to cover gradable adjective and non-gradable adjective. In tomorrow's topic I will be continuing with the same degrees of adjective because I will be telling that there are some words which takes er or est to make them comparative or superlative, and some degrees we have which if we want to make them in comparative degree we must be putting more, and if we want to make them to superlative degree then we will be writing most with that adjective. Okay, so I will be telling all those rules. Okay, degrees of adjective, we have three different types of adjective, three different degrees of adjective. First one is called positive degree, second one is called comparative degree, and the last one is called superlative degree. Okay, what is positive degree? Positive degree is simple described noun or pronoun. See, in this degree you are not, okay, you are not about to compare anything. In the positive degree we do not compare any person, any place or anything. We simply describe that person, we simply tell us about that person or place or thing. Here there is no comparison between any two or three persons, places or things. It only describes what? It only describes noun or pronoun. I hope we have done with it. May I translate it into Urdu? ओके, पॉजिटिव डिग्री उस डिग्री को कहते हैं, देखो इसमें सिर्फ के आपके पास तीन डिग्री होते हैं. एक को हम लोग पॉजिटिव सादा डिग्री, दूसरे को कंपैरेटिव जहाँ पे आप दो लोगों या दो जगहों या दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करो, मुआवजा करो. तीसरे को सुपरलेटिव कहते हैं, ये फिर तीन चीज़ों के दरमियान मुआवजा या तीन से ज़्यादा, चाहे चीज़ें हो, चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेसेस हो. तो पॉजिटिव डिग्री देखो, ये बोला ये सिर्फ नाउन, इसम और इसमें ज़मीर के बारे में कुछ बताते हैं. जो इसमें सिफ्त है, इसमें सिफ्त का पॉजिटिव डिग्री है, वो इसम यानी नाउन और इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं. इसको कंपेयर नहीं करते. देखो, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय. यहाँ पे एक बंदा है या नहीं है? यहाँ पे एक बंदा है. एक बंदे की कंपैरिजन हम लोग नहीं, किसके साथ? एक ही बंदा है तो हम लोग कंपैरिजन किसके साथ करें? ओके, सो हियर वी आर नॉट अबाउट टू compare any person, place or thing. Let's come to the second degree, which is called comparative degree. In comparative degree, comparison is done between two persons, places or thing. देख लो, अभी कंपैरिजन आ गया. यहाँ पे देखो, ये मेरे साथ दो मार्कर्स है, ये मेरे साथ दो मार्कर है. अभी इन दोनों के दरमियान में मुआवजा करो, में कंपेयर करो कि यार ये मार्कर इससे अच्छा है. दिस मार्कर इज बेटर देन इट, दिस मार्कर इज बेटर देन इट. देखो, मैंने कहा दिस मार्कर इज गुड, नहीं कहा. गुड का कंपैरेटिव डिग्री फिर क्या होता है? बेटर होता है. तो मैंने क्या यूज किया? दिस मार्कर इज बेटर देन इट. If you are going to compare between two persons, places or thing, there you will be using which type of adjective, which type of degree? Comparative degree. If comparison is done between two things or persons or places. Okay? चलो, अभी अगर मैं कहूँ she is hard worker than her, वो इससे मेहनती है. अभी मैं दो लड़कियों के दरमियान क्या कर रहा हूं?
कंपैरिजन कर रहा हूं, जब मैं दो लड़कियों के दरमियान या दो चीजों के दरमियान या दो प्लेसेस के दरमियान कंपेयर करूं, इस यहाँ पे फिर मैंने कौन सा डिग्री यूज करना है? आई हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री. व्हाट दे विल बी इन एग्जाम, व्हाट दे विल बी गिविंग? They will be giving comparative. Okay, your sentence, whole sentence will be of comparative degree, and they will be putting superlative degree. So you have to identify the circumstance where we have problem. चलो किस तरह देंगे ये मिस्टेक्स? कंपेरेटिव दो आदमियों के दरमियान बात होगी, जैसा दिस मार्कर इज बेस्ट देन इट, दिस मार्कर इज बेस्ट देन इट. अभी मेरा ये सेंटेंस गलत है. क्यों गलत है? मैंने बेस्ट यूज किया. गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या है? बेटर. बेटर का सुपरलेटिव डिग्री क्या है? बेस्ट है. मैं यहाँ पे दो चीजों के दरमियान कंपेयर कर रहा हूँ. इफ आई एम कंपेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स, सो आई मस्ट बी पुटिंग विच डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री, नॉट सुपरलेटिव डिग्री. आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग इट. समझ में आ रहा है? ओके. The last one, C. He is better than I am. He is better than I am. In this sentences, two persons are there. Two persons are there, and it is telling that he is better than I am. Here I used which adjective, which degree of adjective? Comparative degree of adjective. Okay? So he is better than I or? Then I am. According to the rules of pronoun, if two pronouns are joined, by then we must be putting same case, subject subject, object Not object. I am. I am, yes. यानी मुझसे पूरा सेंटेंस नहीं है. आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा वो लगता है हेल्पिंग वर्ब? फिर इसका करते वर्ड तो नहीं लगेगा. किसके He is साथ? better than I was. इस तरह भी बोल सकते हैं. ओके. लेट्स लास्ट वन, सुपरलेटिव डिग्री. In superlative degree, comparison is done between three or more than three persons or things. यहाँ पे मेरे साथ 3 मार्कर्स नहीं है, तो अगर कंपैरिजन मुआजना 3 या 3 से ज्यादा चीजों के दरमियान हो जाए, तो उस केस में आप लोगों ने कौन सा डिग्री प्रेफर करना है? सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री. ये लास्ट फर्स्ट पेपर का एमसीक्यू भी है. चलो मैं लिखवा देता हूँ. पास्ट पेपर में ये आया भी था. देखते हैं क्या आया है. ये मैं देख रहा था किधर मेरे अंकों से गुजरा. अच्छा, ही इज बेटर देन ऑल द बॉयज इन द क्लास. पास्ट पेपर है. ही is better than all the boys in the class. देखो यहाँ पे एमसीक्यू किस तरह आया है. यहाँ पे इसका ए ऑप्शन दिया है, बेटर का बी ऑप्शन, ऑल का सी, क्लास का डी ऑप्शन दिया है. अभी कौन मुझे बता सकता है कि क्या ये जुमला सही या गलत? सी ऑप्शन गलत है. अच्छा, इसके दरमियान इसके जगह पे मैं क्या लिखूं? समझ में नहीं आया. अगर ये एमसीक्यू आप हल नहीं कर सकते हो तो आपको समझ नहीं आया. ये सुपरलेटिव डिग्री यूज होना चाहिए. वेरी गुड. देखो, ही इज बेटर देन ऑल द बॉयज इन द क्लास. बॉयज मेरे साथ 3 या 3 से ज्यादा है या नहीं है? एक क्लास में कम से कम 2 तो नहीं होंगे, 2 से ज्यादा लड़के ना, या फिर 2 से ज्यादा की बात हो रही है. और 2 से ज्यादा के लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते. हियर इट विल बी बेस्ट. ही इज बेस्ट देन ऑल द बॉयज इन द क्लास. ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. सही है. देखो, इन सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन इज डन बिटवीन 3 और मोर देन 3 पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स. 3 या 3 से ज्यादा. ओके,
What is adjective? Adjective, we have two different types of adjective. One is called gradable adjective and another one is called non-gradable adjective. Now what is gradable adjective and what is non-gradable adjective? The adjectives which have comparative and superlative degree of adjective. If I ask you that क्या हम लोगों के पास सारे जितने भी एडजेक्टिव्स है उसके हम लोगों के पास इसकी पॉजिटिव डिग्री है या नहीं? दुनिया में जितने भी एडजेक्टिव्स है क्या हमारे साथ उसकी पॉजिटिव डिग्री प्रेजेंट है या नहीं? ओके, किसी को नहीं पता है? तो जितने भी हमारे साथ एडजेक्टिव है, जो भी एडजेक्टिव आ जाए उसका सिंपल जो फॉर्म है वो खुद पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखो, द एडजेक्टिव दैट कैन मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नहीं लिखा। पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हर एडजेक्टिव का पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, चाहे वो ग्रेडेबल हो चाहे वो नॉन ग्रेडेबल हो। तो वो एडजेक्टिव्स जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री प्रेजेंट हो, such adjectives are called gradable adjectives, and those which do not have, which cannot make its comparative, which do not have its comparative and superlative degrees of adjective, such adjectives are called non-gradable adjectives. Okay, these are the definition of it. Now note is there, gradable adjectives can be strong by adding intensifying adverbs. Okay, now first of all, what is intensifying adverbs? Intensifying adverbs यहाँ पे मैंने लिखा है very and extremely are called intensifying adverbs. दो words हम लोगों के पास है, one is called very and another one is called extremely. These two words are called intensifying adverbs. If we want to make a particular adjective more strong, अगर हम लोग gradable adjective को और जोर देना चाहते हैं और emphasize करना चाहते हैं तो उस केस में आप लोगों ने क्या लगाना होगा? intensifying adverbs लगाना होगा। अभी intensifying adverb क्या है? very और extremely को हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिफाइंग एडवर्ब्स कहते हैं। मेरे ख्याल से सर से गुजर रहा है, समझ नहीं आ रहा है? चलो, वेरी और एक्सट्रीमली ये दो लफ्ज मेरे साथ क्या है? इंटेंसिफाइंग एडवर्ब्स है। अगर मैं इस ग्रेडेबल एडजेक्टिव को स्ट्रॉन्ग मजबूत करना चाहता हूं, इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा? इंटेंसिफाइंग एडवर्ब्स लगाऊंगा। और इसको इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है ना, उसको मैं अगर रिड्यूस करना चाहता हूं, कम करना चाहता हूं, तो मैं फिर मॉडरेटिंग एडवर्ब्स लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? मॉडरेटिंग। वन इज कॉल्ड इंटेंसिफाइंग एडवर्ब एंड अदर वन इज कॉल्ड मॉडरेटिंग एडवर्ब। एडवर्ब सेक्शन में पढ़ोगे अ बिट ऑफ, अ लिटिल, प्रिटी, क्वाइट, फेयरली, समवट, रादर, स्लाइटली। ये कुछ वर्ड्स मेरे साथ है, इनको हम लोग मॉडरेटिंग एडवर्ब कहते हैं। आसान सी बात है, अगर आप लोग ग्रेडेबल एडजेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, यू हैव टू पुट इंटेंसिफाइंग एडवर्ब। इफ यू वांट टू रिड्यूस द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ ग्रेडेबल या डिक्रीज या रिड्यूस द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ ग्रेडेबल एडजेक्टिव, पुट moderating adverbs with them. Their meaning will be decreased or reduced. See, you can make gradable, ये अभी मैंने बता दिया। So for example, 1 minute. His speech was a bit good. His speech was a bit good. Now here in this sentence, what I have put? This is moderating adverb. उसका speech थोड़ा सा सही था। A bit is what? A bit is moderating adverb. Now good को, good मेरे साथ gradable adjective है नहीं? Good, better, best, सारे से बैठे हो कुछ। good मेरे साथ क्या है?
गुड मेरे साथ ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, गुड का कंपैरेटिव डिग्री मेरे साथ बेटर है और उसका सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है। अभी इसकी जो मीनिंग है उसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, डिक्रीज कम कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मैंने इससे पहले कौन सा एडवर्ब लगाया, मॉडरेटिंग एडवर्ब। अभी देखो मॉडरेटिंग एडवर्ब यहाँ पे अबिट है, अबिट ऑफ, तो ये अबिट मॉडरेटिंग एडवर्ब मैंने लगाया तो इसका मीनिंग डिक्रीज हुआ। ओके, और जी मिस व्हाट यू आर टेलिंग? Sir, for example, very good. He is very good boy. Here we are not comparing. He is, yes, Decrease. डिक्रीज तो ये हुआ, चलो इंक्रीज का आप एग्जांपल दो। Sir, his speech was very good. His speech was very good. इसी यही सेंटेंस है, his speech was very good. Now she has increased in the meaning of gradable adjective by adding what? By adding intensifying adverb। मैं भी आपको पढ़ा नन ग्रेडेबल एडजेक्टिव में आपको बता चुका हूं कि वो एडजेक्टिव्स जिनकी हम लोग न कंपैरेटिव न सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, उस एडजेक्टिव को हम लोग नन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। नोट में कहा है कि वी डोंट यूज इंटेंसिफाइंग एंड मॉडरेटिंग एडवर्ब्स विद नन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ये रूल है कि आप लोग इंटेंसिफाइंग एडवर्ब्स और मॉडरेटिंग एडवर्ब्स नन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि ये इंटेंसिफाइंग एडवर्ब और मॉडरेटिंग एडवर्ब्स कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए, यार यहाँ पे न कंपैरेटिव डिग्री है ना सुपरलेटिव डिग्री, तो आप लोग कैसे लगाओगे? ओके, दिस इज द रूल। एंड सी अभी ये क्वेश्चन बन सकता है, चलो सर यू आर टेलिंग अस दैट वी कैन नॉट पुट moderating or intensifying adverbs with the non-gradable adjectives. So how we can increase in the meaning of non-gradable adjective? हम लोग इसको reinforce कैसे करें, इसके मीनिंग को, इसके मीनिंग को non-gradable adjective के मीनिंग को intensify कैसे करें? उसके लिए हम लोगों के पास कुछ वर्ड्स है, देखें। Non-gradable adjectives can be made stronger by using following words: completely, purely, absolutely, totally, utterly। अगर आप इसको इन वर्ड्स को आप क्या करो, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव से पहले लगाओ, तो आपके मीनिंग जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का मीनिंग क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अभी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या है? यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, सिर्फ ये वर्ड याद रखो बस, और आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, एक्सेलेंट, सुपर्ब, फॉल्टलेस, सर्कुलर, राउंड, flawless, different, preferable, exhausted, finished, final, finished, दो दफा लिखा है, dead। ये जो वर्ड मेरे साथ है, इन सब को हम लोग कौन से एडजेक्टिव कहते हैं? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। दैट आई विल बी टेलिंग। अभी इसको हम लोगों के साथ इसका ना यूनिक का ना मेरे साथ कंपैरेटिव डिग्री है ना सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, देयर इज नो वे टू डिक्रीज द मीनिंग ऑफ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ओके मैं देयर इज नो वे। देखो यहाँ पे अभी मिस ने सवाल किया कि हम लोग इसके जैसे यहाँ पे इसकी मीनिंग को हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हो क्योंकि ये कंपैरिजन दो दरमियान कंपैरिजन चल रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है। तो जब कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको क्या कैसे कम करोगे? देयर वी यूज ओनली फॉर वन पर्सन। पॉजिटिव डिग्री किसके लिए यूज होती है? सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के लिए, या एक ही प्लेस या एक ही चीज के लिए और थिंग के लिए यूज होती है। आई होप यू हैव डन विद इट। टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एडजेक्टिव।